Cases are there. Okay. And so now in Pune you are there since 5 years, you said? Yeah. So basically, our main principle is what is called pyramidal healthcare, where the general practitioners who are forming the base of the pyramid, we want to increase their importance. We want to make them stronger, increase their capability so that they are able to manage patients better and they are able to manage more cases themselves rather than this thing. So the whole idea is that if they are strong, then the whole pyramid becomes strong. That is the whole principle of this particular pyramidal healthcare model. So we're going to mainly talk about how we can empower, improve more general practitioners more capable to manage their patients. I think, shall we start, Monica? Yes, sir, we should start. Yes, sir. I think we should start now. That Dr. Deepak was trying. Trying. Yes, I've got a alert at least 3 times actually. Yeah, he tried every time he comes and drops in, but we now. Not Dr. Deepak, sir. It was Dr. Rajiv. Rajiv, sorry, Rajiv. Yeah, Deepak is here. Yeah. Dr. Rajiv, yeah. Yeah, Dr. Rajiv was trying and he 3-4 times he came and dropped off. Yeah. Hello, Dr. Deepak. Yeah, fine, sir. How are you? Fine, sir. Yeah, so I think we'll just start our presentation because this person with Samsung, has he connected to audio? No, sir. Oh, No. not sir, not connected, sir. Not yet connected to the audio. Can you hear us? Samsung SM? No, sir. If the audio is not connected, he won't be able to hear us either. Fine. So I think we'll start. So the whole purpose is that to empower the general practitioners, to empower the base of the pyramid, the primary doctors, whoever they are, it could be primary doctors, even sometimes are in small nursing homes, small hospitals. So it's whoever is primarily managing the patient, we try to empower them. That is the whole purpose. That's the whole concept. And as far as family doctors are concerned or general practitioners are concerned, effectively what we can do is that we can convert your clinic. This whole process converts your clinic into a multi-speciality clinic. So you yourself are able to offer a variety of specialties and from your clinic. So that means it becomes a polyclinic itself. It becomes a small multi-speciality clinic itself. And that is the whole purpose. So and that would increase patient loyalty because the patients are happy because you are able to offer multiple specialties, multiple specialty support to your patients. So it would increase patient loyalty. So when we are looking at challenges of family practice, म्हणजे क्या क्या तकलीफ होते हैं कि आज प्रैक्टिस में अगर क्या क्या अपने को चैलेंजेस है, वो अगर आप देखने जाएंगे तो एक तो पहला चैलेंज बड़ा हो जाता है कि आजकल मेडिकल प्रैक्टिस इतनी फास्ट, मेडिकल इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट इंक्रीज हो रही है, तो वो उसके साथ मैच करना
वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, बिकॉज फाइनली किसी का भी जो ब्रेन है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, और मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट एक्सपांड हो रही है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी आजकल बढ़ती ही जा रही है। क्या है कि वो लोग इंटरनेट पे कुछ पढ़ते हैं, कोई सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ते हैं, कि हमारे डॉक्टर ने ये किया, हमारा ये प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो भी वो उनका भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ता जाता है कि उनको सब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके कारण उनका भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है। उनका एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ता जाता है, तो जब हम एज डॉक्टर्स उनके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाते हैं, तो उनका सस्पिशन बढ़ जाता है, थोड़ा इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है, और लॉयल्टी भी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट्स भी, जो कंज्यूमर कोर्ट्स है और वो सब, कि भाई दे आर नॉट लुकिंग एट डॉक्टर्स इन अ वेरी हेल्दी वे। उनको भी लगता है कि नहीं, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास से ओपिनियन लेना आना चाहिए। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि हर अगर नहीं किया तो इट विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजेंस। ये सब जो चैलेंजेस है उसके लिए अपने को कुछ तो भी सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि कैसे हम लोग ये चैलेंजेस फेस करें। एक तो सिंपल सॉल्यूशन जो हम लोग ने अभी तक ट्राई किया ही है और करते रहते हैं, कि आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कीप ऑन अटेंडिंग, बुक्स पढ़ते रहते हैं, अटेंडिंग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, सीएमईज अटेंड करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें भी जो सिचुएशन है, सॉरी, भाई हर एक जो इंफॉर्मेशन बुक में जो भी दी है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीड एट टाइम्स। हाँ, थोड़ा थियोरेटिकल लगता है कि ये सब हम लोग अल्टीमेटली पेशेंट मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करेंगे। तो 25 रीजंस दिए हैं, लेकिन पेशेंट, ये जो हमारे पास पेशेंट है, वो 25 रीजन में से कौन से उसमें फिट होता है, वो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट करना है वो उसके प्रॉब्लम्स है। दूसरा, जो सीएमईज मीटिंग्स होती है उसमें थोड़ा प्रोपेगेंडा और वो सब ज़्यादा लगता है, कभी कभी अपने को फेथ पूरी तरह से नहीं आती है कि भाई सचमुच है कि हर एक जन आपके बोलता है कि नहीं, ये मेरा ये जो प्रोसीजर है ये तो बेस्ट प्रोसीजर है, 100% सेफ्टी है, 100% रिजल्ट है। तो ये सब इस तरह का मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा प्रोसीजर, तो वो भी हमें कन्विंसिंग नहीं लगता है कभी कभी। ऑफ कोर्स दूसरा एक ऑप्शन है कि हमारे फ्रेंड्स जो कंसल्टेंट्स हैं उनमें उनमें किसी को फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो कि भाई ऐसा ऐसा केस है, क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। वो सब कर सकते हैं। दैट इज़ अ सिंपल वे विच वी आर अगेन डूइंग इट। इसमें क्या है कि देयर इज़ अ लिमिटेशन कि कितने लोगों के लिए इंफॉर्मेशन मांग सकेंगे, ऑब्लिगेशन कितनी बार ले सकेंगे, और क्या है कि मेडिको लीगल प्रोटेक्शन तो नहीं है कि भाई हमने हमारे कंसल्टेंट फ्रेंड से पूछ के ये ट्रीटमेंट चालू की थी, या हमने किसी को पूछ के ऐसा ऐसा चालू किया था, वो तो मेडिको लीगल प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलता है। पेशेंट को भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि भाई हमने कंफर्म करके, किसी के साथ कंफर्म करके आगे ट्रीटमेंट चालू की है। और प्लस व्हाट्सएप पे डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और वो सब का बड़ा इश्यूज हो जाते हैं, तो वी अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। देन जो आजकल हम लोग अभी तक जो मेथड यूज़ कर रहे हैं कि भाई जरा डिफ़िकल्ट केस है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशन है, आइदर हमें क्लिनिकली डिफ़िकल्ट लग रहा है, या तो फिर कभी कभी पेशेंट का सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है कि पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड कि हम लोग ने जो ट्रीटमेंट दिया है, तो रिफ़र कर देते हैं कि भाई चलो जाके किसी XYZ कंसल्टेंट को जाके रिफ़र कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि पेशेंट वेरी ऑफन गेट्स डाइवर्टेड बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, सो वो पेशेंट फिर वापस नहीं आता है। तो वी मे लूज दैट पेशेंट। दूसरा, कभी कभी अगर पेशेंट एक जगह पे हम लोग ने रिफ़र किया, दूसरे कंसल्टेंट के पास पहुंच गया, तो वो पेशेंट कभी कभी थोड़ा बुरा कभी बोल देता है, वो पेशेंट क्या, डॉक्टर कभी बुरा बोल देता है पेशेंट के आगे, ठीक तरह से बात नहीं होता है, तो उसमें अपना और भी बुरा दिखता है। ऑफ कोर्स पेशेंट को इनकन्वीनियंस होती है, अगर बाहरगांव जाने है तो बाहरगांव जाने के लिए, तो उसके लिए अगर दूर जाना है तो उसके लिए कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट लेने का लिए, वो सब के लिए जो इनकन्वीनियंस होती है वो एडिशनल इनकन्वीनियंस है। तो पिरामिड जो हमारी कंपनी है वो एक नया सोल्यूशन लाई है इसमें। ये टोटली हमारा कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट है, कि जैसा मैंने कहा कि जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली प्रैक्टिशनर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर में।
ये जो बेसिक एजम्पशन है उसके ऊपर चल रहा है। तो हम लोग क्या एम करते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एवरी फैमिली प्रैक्टिशनर कैन मैनेज क्लिनिकल चैलेंजेस मोर एंड बेटर, दैट इज द होल पर्पस ऑफ आवर एम। और इसमें क्या है कि जब कभी वो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फैमिली प्रैक्टिशनर ही पेशेंट को कंट्रोल करे। ही इज़ द वन हु डिसाइड्स कि पेशेंट को क्या करने की ज़रूरत है, क्या किधर जाने की ज़रूरत है। और जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो स्पेशलिस्ट के पास, जब उनको चैलेंज लगेगा फैमिली प्रैक्टिशनर को कि भाई ये प्रॉब्लम है विच आई कैन नॉट मैनेज, तो ही कैन रिफर टू अ स्पेशलिस्ट। ज़रूरत पड़ेगी तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास भी भेज सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट द फैमिली प्रैक्टिशनर डिसाइड्स दिस। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिडल हेल्थ केयर। सो हम लोग ने इसके लिए किस तरह से एक सोल्यूशन निकाला है। तो पेशेंट आपके साथ है, आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि भाई ये पेशेंट को स्पेशलिस्ट का ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप क्या करो कि ऐप पे आप स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट फिक्स करो, ताकि आप ही पेशेंट के साथ स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। पेशेंट और आप साथ में पेशेंट स्पेशलिस्ट के साथ वीडियो कंसल्टेशन करेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उसका जो पेमेंट करना है वो कर देते हैं। उसके बाद आप वीडियो कंसल्ट करो, जिस टाइम पे आपने स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्टेशन फिक्स किया है उस टाइम पे एक वीडियो कंसल्टेशन, उस समय आप पेशेंट के साथ वीडियो कंसल्टेशन फिक्स करो। वीडियो कंसल्टेशन जब फिक्स होता है उसके साथ वो वीडियो कंसल्टेशन के दरमियान आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं। कैन यू म्यूट दिस ऑन जस्ट नाउ? All are muted, sir. Is this noise coming? Some disturbance is coming, na? Okay, yeah. So Yes, there was an issue. The doctor was not able to log in, has logged in now. okay, yeah. So the doctor who's just joined us is now well connected. Okay, nice. चलो. So जो प्राइमरी डॉक्टर है, he discusses the case कंसल्टेंट के साथ पूरी तरह से। पेशेंट के सामने डिस्कशन होता है, कंसल्टेंट भी पेशेंट के साथ बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, और कंसल्टेंट उसके हिसाब से ओपाइन करता है कि भाई ये चीज़ करने की ज़रूरत है, या ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या ये ट्रीटमेंट में चेंज करने की ज़रूरत है, या ये इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। तो वो ओपाइन करता है, उसके बेसिस पे वो फिर पेशेंट को एक हेल्थ रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड बनता है। वो मेडिकल रिकॉर्ड उसके पास, पेशेंट के पास भी आता है, डॉक्टर के पास भी रहता है, ताकि आपने अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट स्पेशलिटी ओपिनियन ले लिया है, वो एक रिकॉर्ड रहता है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू की है, वो भी एक रिकॉर्ड रहता है। तो उससे क्या होता है कि आप मेडिको-लीगली कंप्लीटली सेफ रहते हैं। सो एंड हर एक की प्रैक्टिस में कभी कभी तो चैलेंजिंग केस आते रहते हैं, कि जो या तो जैसा मैंने कहा पहले भी कि या तो जब देखते हैं तब हमें चैलेंजिंग लगता है, या तो फिर पेशेंट थोड़ा दिन ट्रीट करते हैं, उसके बाद नेसेसरी रिस्पांस नहीं आता है, रिप्लाई अपने को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं भाई ये इसमें कुछ गड़बड़ है, क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं मिलता है, क्यों इसको अभी घड़ी घड़ी तकलीफ होती है इसकी। तो ये सब जो चैलेंजिंग केसेस है जो हम खुद नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कभी ना कभी दूसरे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो पिरामिड का ऐप है, उससे आपका क्लिनिक ही एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बन जाता है। आपको कुछ उसके लिए पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। और यू कैन एक्सेस मेडिकल कंसल्टेंट्स अक्रॉस द नेशन। मतलब सिर्फ आपके जो नज़दीक में जो मेडिकल कंसल्टेंट्स है वही नहीं, बट आप जिधर भी बैठे हैं उधर से लेके दिल्ली, पूना, चेन्नई, हमारे पास कंसल्टेंट्स हर एक जगह के कंसल्टेंट्स हैं, और ये सब कंसल्टेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप खुद के अपने कंसल्टेंट्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसल्टेंट के स्पेसिफिक चाहिए जो हमारे ऐप पे नहीं है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने रिकमेंड किया तो हम लोग जो हमारे हर एक डॉक्टर के पास से 10 रिकमेंडेशंस जो लेते हैं, अप टू 10 कंसल्टेंट्स के रिकमेंडेशंस हम लोग फ्री एनरोल करते हैं। मतलब आपने अगर 10
मेडिकल स्पेशलिस्ट के नाम दिए और वो लोग ने एनरोल किया, तो वी विल नॉट चार्ज देम अ सिंगल पाई फॉर एनरोलिंग देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सो यू कैन कंटिन्यू टू कंसल्ट विद द सेम कंसल्टेंट. वी डोंट वांट कि भाई आपका जो जिसके पास आपको फेथ है कि भाई आप कार्डियोलॉजी के लिए या न्यूरोलॉजी के लिए XYZ डॉक्टर के साथ आपको फेथ है, आपको लगता है कि वही अच्छे हैं, तो आप उनका नाम दीजिए और वो अगर हमारे उधर एनरोल कर देंगे, हमारे ऐप पे एनरोल कर सकते हैं, और उसके लिए वी विल नॉट चार्ज देम एनीथिंग. सो even as a consultant we don't charge. Otherwise normally we are charging consultants for enrolling, but for those, if you recommend 10 people, up to 10 people, then none of those people we will charge. So that is the whole method. So we are not trying to, आपका पेशेंट आपसे अलग नहीं करना चाहते हैं. We are trying to ensure that your patient remains with you only as much as possible, and that is how we are giving you this option that you can give us 10 names so whom we can enroll. टाइम पे स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको मेडिको लीगली सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट को भी फ़ायदा होता है. अभी यूजुअली क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को रिफ़र करते हैं तो पेशेंट बोलता है नहीं आज नहीं जाऊंगा, 5 दिन के बाद जाऊंगा, 3 दिन के बाद जाऊंगा. हाँ, तो वो 3 दिन में कभी कभी डिले हो जाता है, तो वो भी ये सब बच जाता है. आप सेम डे या नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट डिस्कस कर सकते हैं और आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं. हर एक कंसल्टेशन का जो फीस पेमेंट पेशेंट करता है प्लेटफॉर्म पे, उसमें से आपको भी एक शेयर मिलता है. मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंसल्टेंट को ही वो पैसा जाएगा, आपको भी थोड़ा शेयर उसमें से मिलता है. मतलब यू आर ऑल्सो एंटाइटल, बिकॉज ये जॉइंट कंसल्टेशन है, सो यू आर एंटाइटल टू अ पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेशन फी. और हर एक इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट आपके अंडर होता है, इसलिए आपके पास उसका भी रेवेन्यू बेनिफिट मिलता है कि सब आपके अंडर ही हो रहा है. सो उसके लिए आपके पास ही पेशेंट आएगा, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलता है. पेशेंट का फॉलोअप भी आप कर सकेंगे, बिकॉज एक बार आपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर लिया है तो उसके बाद उसका जो फॉलोअप करने का है, तो ये नहीं है कि भाई छोटा मोटा फॉलोअप आप कर सकते हैं. पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी कि उसको हर बार फॉलोअप के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप फॉलोअप करते रहेंगे तो उसका जो भी आपको रेवेन्यू मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है, वो आपको मिलेंगे. उसमें हम लोग को कुछ नहीं चाहिए. सो ओवरऑल क्या होता है कि पेशेंट का फेथ जो प्राइमरी डॉक्टर है उसके ऊपर बहुत इंक्रीज हो जाता है. नॉर्मली सब जो टेलीमेडिसिन जो प्लेटफॉर्म्स है वो उसमें फैमिली डॉक्टर बाईपास हो जाता है. पेशेंट डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लेता है, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लेता है, तो उसमें फैमिली डॉक्टर बाईपास होता है. तो इसमें क्या है कि वी हैव एंश्योर्ड कि फैमिली डॉक्टर डज नॉट गेट बाईपास. एंड नॉट ओनली दैट, द फैमिली डॉक्टर ऑल्सो बेनिफिट्स. हर एक बार डिस्कशन करता है कंसल्टेंट के साथ, तो उसके बेनिफिट उससे उसको केस बेस्ड नॉलेज भी होता है. हर बार वो डिस्कशन से थोड़ा थोड़ा नॉलेज इंप्रूव होएगा. अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो तो भी क्या होता है कि प्री एंड पोस्ट ऑप मैनेजमेंट कैन बी डन अंडर यू, सो दैट उसका जो इन्वेस्टिगेशन है बिफोर सर्जरी या बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो, जो अभी एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली उसका पोस्ट ऑप मैनेजमेंट आप कर सकते हैं. जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है कि एक तो पेशेंट को कंटिन्यूटी ऑफ केयर मिलता है, मतलब उसके ही डॉक्टर के पास से कंटिन्यूटी ऑफ केयर मिलता है, और आपको भी वो बेनिफिट मिलता है कि पेशेंट आपका ज़्यादा कंफर्म होके ज़्यादा लॉयल्टी बढ़ जाता है. और ऑफकोर्स अगर कुछ भी इस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे. इतना ही नहीं कि कभी कभी अगर आपको लगा कि नहीं एक न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया लेकिन अभी मुझे दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट को भी ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, वो भी इजी हो जाता है. पेशेंट को, जैसा मैंने कहा, ट्रैवल नहीं करना पड़ता है. तो आपने आज एक न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लिया, कल ही दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट का भी ओपिनियन ले लो, तो वो एक साथ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो वो भी ईजी हो जाता है. जहाँ तक पेशेंट है, पेशेंट का तो पैसा बहुत बच जाता है. पेशेंट का पैसा बच जाएगा तो वो खुश हो जाता है, बिकॉज एक तो उसको ट्रैवल नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रैवल के रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस है वो सब बच जाते हैं. उतना ही नहीं, वो हर बार अगर उसको कंसल्टिंग के लिए जाना है, कहीं पे दूर जाना होगा, तो उसका जो समय जाता है उसका जाएगा, वो उसके साथ केयर गिवर होएगा साथ में, वो भी होगा, उसको भी साथ में जाना पड़ेगा. तो 1-2 दिन अगर उसका जो बिगड़ता है या आधा घंटा आधा दिन बिगड़ता है तो उसका पैसा उसमें भी बच जाता है. अभी आज कोविड अभी भी कम्प्लीटली गया नहीं है, और भी हर एक तरह के इन्फेक्शंस होने, अगर बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो उधर क्रॉस इन्फेक्शन होने का डर रहता है.
तो वो भी बच जाता है, सो वो सब उससे पेशेंट बच जाता है। ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट वी हैव ऑन आवर पैनल। 40 अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट, अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिटीज़, मतलब ऑर्थोपेडिक में भी 4 या 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज़, हर एक अलग छोटे छोटे स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट है। तो आपको जिस तरह के अपॉइंटमेंट, जिस तरह का ओपिनियन चाहिए उस तरह के अपॉइंटमेंट और ओपिनियन मिल सकता है। और पेशेंट आपके पास ही रहता है तो उससे, जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहता है। आपको पेशेंट की हिस्ट्री मालूम है, उसका सोशल बैकग्राउंड मालूम है, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद भी जब पेशेंट आता है आपके पास, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको याद है कि भाई उसने पहले 3 महीने पहले एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया था, बिकॉज उसको आपके थ्रू ही ये सब ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपको सब मालूम है। तो पेशेंट को कंटिन्यूटी ऑफ केयर मिलता है। और बिकॉज आपके पर उसको कंप्लीट फेथ है, बिकॉज इतने सालों से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो पेशेंट का कंप्लायंस भी बढ़ जाता है। वो ही विल follow whatever your advice is, he will follow your advice, he has full faith in you. So that is again a benefit to the patient, and that way that's a benefit to you also. So friends, अब तक हम लोग एक तरह से प्रैक्टिस करते आए, we have reached a particular standard, particular status, particular level, and that is because of whatever the circumstances which created, we have reached where we are. लेकिन अगर हमें हमारे सर्कमस्टेंसेस से और हमारे स्टेटस से आगे बढ़ना है, सो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट। एंड एज आई सेड दैट पिरामिड इज हेल्पिंग यू टू कन्वर्ट योर क्लिनिक इनटू अ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। नाउ if you are convinced about it, we are not charging you for that. If you are convinced about it, we expect that you can download the app, register on Pyramid and start using it. Registration is completely free. You don't have to pay a single pie. Start using and you will benefit from Pyramid. So हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब इधर हैं, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है। So अभी डॉक्टर मोनिका will tell you how to download the app, how to start book the appointment, how to start consulting. Very briefly she will tell you how simple the app is, so that you get an idea of how the app is, how simple it is. वो अभी आप डॉक्टर मोनिका will tell you, and from that we expect that if you are convinced, if you have any questions, please ask us, but otherwise if you are convinced, then please go ahead and start using the app. Thank you. Thank you, sir. I need to share my screen. Yeah. I think some doctors have joined. We will talk to them a little later again. Of course, if there are any questions after from what I have spoken and what Dr. Monica has spoken, you can put us those questions. Dr. Ashwin Shah has just put up the phone numbers, जो हमारे सबके phone numbers हैं, so you can contact on any one of us at any time and get some information if you are interested. I think आपके मैसेज में भी फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे हमारे, कि कौन कौन हमारे जो, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो ये वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो आपको लिंक मिल जाएगा ताकि यू कैन गो थ्रू द वीडियोस। एंड अगेन जो पूरा प्रोसेस अभी डॉक्टर मोनिका ब्रीफ में समझाएंगे, उसके डिटेल्ड वीडियोस यूट्यूब पे हैं, तो उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। या डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो डॉक्टर्स, बहुत सरल तरीके से आपको बता देते हैं कि ये ऐप कितना आसान है यूज करने के लिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा पिरामिड ऐप, PYRAMED पिरामिड ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। छोटा सा ऐप है, ज्यादा जगह नहीं लेगा, बस आपको ऐप खोल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, फिल करना है, सिंपल सा फॉर्म है, और उसको सबमिट कर देना है। वो सबमिट करने पे हम आपको अप्रूवल दे देते हैं और आप लोग आगे बढ़ सकते हो, आपका अकाउंट खुल गया। हर बार आपको ऐप यूज करना है तो आपको सिर्फ ऐप में लॉग इन करना है। लॉग इन करके यू कैन ऐड द पेशेंट, एज यू कैन सी यू कैन ऐड द पेशेंट। यहाँ पेशेंट ऐड करने का बटन है,
Whenever there is a patient who needs a specialist opinion, just add your patient. आपको पेशेंट जो जो ऐड किए जाते हैं उनकी लिस्ट दिखती है, उसको खोल के आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं पेशेंट सिलेक्ट करके। अब पेशेंट सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए पूरी डायरेक्टरी खुलेगी। हमारे पास बहुत सारी स्पेशलिटीज है और आपके जरूरत के हिसाब से आप स्पेशलिटी और स्पेशलिस्ट को चुनिए। फिल्टर लगा के कहाँ लोकेटेड है, कितनी फीस है, सब चीज के हिसाब से आप चुन सकते हो, उनका इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। स्पेशलिस्ट चुनने के बाद उनका स्लॉट चुनिए जो आपके और आपके पेशेंट के लिए सुविधाजनक है, वो स्लॉट सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए पे करके। जो आपके अपॉइंटमेंट के लिए, आपके पेशेंट के सुविधा के लिए आप बहुत आसानी से पेशेंट डिटेल्स और रिपोर्ट्स भी इसी ऐप में अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए बड़े सरल फॉर्म ऐप में मौजूद है। कंसल्टेशन के समय पे आपने ऐप खोलना है, अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है और वीडियो कॉलिंग शुरू कर देना है। बस वीडियो कॉलिंग स्टार्ट करने वाला बटन दबा दीजिए। वीडियो कॉलिंग के समय पे आप और आपके पेशेंट को सिर्फ फोन को फेस करते हुए बैठना है। फोन को आप अपने से अलग सामने रखिए, बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स होती है उसके सहारे से रखिए। हम भी आपको ज्वाइन करने के बाद एक स्टैंड जरूर देते हैं जिसके सहारे से आप ये फोन आराम से एंगल पे रख सकते हैं। इससे आप और आपके पेशेंट दोनों ही दिखाई देंगे वीडियो कॉल के दौरान। स्पेशलिस्ट के स्क्रीन पे वो आपको देख पाता है, अपने डिटेल्स एंटर कर पाता है और इस तरीके से पेशेंट के सारे सिम्टम्स देख पाता है। इसीलिए ये एक नॉर्मल चिट-चैट वाला कंसल्टेशन नहीं है, ये बड़ा फॉर्मल कंसल्टेशन होता है जहां पे दूर बैठ के भी स्पेशलिस्ट पेशेंट की जांच कर पा रहा है। स्पेशलिस्ट अपने सारे जो मुद्दे हैं इसमें एंटर कर देता है, रिपोर्ट्स देख लेता है, पेशेंट से बात कर लेता है। आपसे बात करने के बाद वो ये कंसल्टेशन सेव कर सकता है या एंड कर सकता है। अगर उसने कोई और टेस्ट मांगे हैं तो वो खाली सेव करेगा और फाइल ओपन रहेगी। अगर उसको सारी डिटेल्स मिल चुकी है तो वो एंड कर लेगा। अगर सेव करे हैं तो आप अपने पेशेंट से टेस्ट कंप्लीट करवा के वही रिपोर्ट इसी के अपॉइंटमेंट में लोड कर सकते हो और स्पेशलिस्ट उसे देख सकता है। जब अपॉइंटमेंट एंड हो जाती है, ओके, तब एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट होती है जो नॉन एडिटेबल है। जो नॉन एडिटेबल है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में आपके डिटेल्स, पेशेंट के डिटेल्स और सारे रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं और इसको एडिट नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करके पेशेंट के साथ शेयर कर देने का है। आपने देखा किस तरीके से बड़े सरल तरीके से आप ये ऐप यूज कर सकते हो। बस आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर होके अपॉइंटमेंट बुक करके एक वीडियो कंसल्ट कर देना है। डॉक्टर्स, आपको प्रोसेस समझ में आया कि मैं कुछ फिर से दोहराऊं आपके लिए? कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं, इवन जनरल क्वेरीज होंगी तो भी आप पूछ सकते हैं, सो दैट वी आर अवेलेबल जस्ट नाउ। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो अभी भी पूछ सकते हैं, सो दैट यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। ये पॉसिबल है कि जो आप You can unmute your mics now. हाँ, हमारे